Hello and welcome to yet another episode of the Unnamed Podcast. And of course, I am your host, RJ Akash, aka Evil Monkey. The Unnamed Podcast में मैं बात करता हूँ कुछ ऐसी अमेजिंग पर्सनालिटीज के साथ जो अपने काम से अपनी लाइफ में तो चेंजेस ला ही रहे हैं, साथ ही साथ सोसाइटी में भी अमेजिंग चेंजेस ला रहे हैं. एंड इन केस यू नो समबडी या फिर आप खुद ऐसी पर्सनालिटी हैं जो अपने काम से अपनी लाइफ में और साथ ही साथ सोसाइटी में भी अमेजिंग चेंजेस ला रहे हैं, देन फील फ्री टू ड्रॉप मी एन ईमेल ऑन evilmonkeyden@gmail.com या फिर आप मेरे फेसबुक पेज द अननेम पॉडकास्ट विद इवल मंकी पर जाकर मेरे को वहां पे मैसेज छोड़ सकते हैं दैट यू वांट टू बी फीचर्ड ऑन दिस पॉडकास्ट और यू नो समबडी जो कि इस पॉडकास्ट पर फीचर होना चाहिए. एंड देन वेल वी विल सेट द थिंग्स रोलिंग एज दे से. एंड ऑफ कोर्स इन द स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि मैंने बहुत दिनों से द अननेम पॉडकास्ट का कोई फ्रेश एपिसोड रिलीज नहीं किया था. वेल बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि दिवाली चल रही थी यहाँ इंडिया में एंड लाइक आई वाज अ बिट बिजी विद दैट एंड ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ फ्यू प्रायर कमिटमेंट्स इन माय ओन पर्सनल लाइफ. तो उसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू रिलीज द एपिसोड्स दैट फ्रीक्वेंटली, बट आई अश्योर यू कि आने वाले टाइम में आई विल बी मच मोर पंक्चुअल व्हेन इट कम्स टू रिलीजिंग न्यू एपिसोड्स ऑफ माय पॉडकास्ट. और साथ ही साथ आज के गेस्ट को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं, सो शी इज एन एब्सोल्यूट रॉक स्टार. Well, figuratively and of course in the way that she sings also. आज मेरी guest जो The Unnamed Podcast में है, she is a Pakistani female singer. Her name is फैज़ा मुजाहिद. मूवी आई थी एक अमिताभ बच्चन तापसी पन्नू स्टारर पिंक, उसके अंदर she sang a very beautiful song and well she became a very अमेजिंग सेंसेशन आफ्टर दैट. बट फिर उसके बाद ज़्यादा काम फैज़ा का हमने देखा नहीं. बट ऑफकोर्स शी वॉज प्रीटी एक्टिव इन पाकिस्तान वेयर शी इज़ फ्रॉम, इन लाहौर. और अब कोविड के टाइम में आई थॉट व्हाई नॉट आई गेट हर ऑन द पॉडकास्ट एंड टॉक टू हर बिकॉज लाइक शी हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन एज फार एज फीमेल सिंगर्स गो. तो लेट्स टॉक टू फैज़ा एंड फिगर आउट दैट व्हाट शी हैज़ बीन अप टू पोस्ट पिंक. Hello Faiza, how are you? I am good. How are you? I am good and we are talking after a very long time. I think Very long time. somebody from my organization interviewed you when the movie Pink came, right? And you were and you sang the song in that movie, right? Yeah, but I don't remember who actually interviewed me at that time. Long time back. It was very time back, like say. So Abhi, how you been? How been the COVID situation there in? So you are in Lahore, right, in Pakistan? Yes, in Lahore, in Pakistan, things are pretty much controlled here. And we just thank God, to be very honest, because I don't think that anyone has any control over COVID. And I think it's because the prayers has been answered or whatever. How you can thank God, or else you can thank the government, or I don't know, but things are pretty much under control right now. So that's pretty cool. Yes. And like how the COVID situation has been to you? Yeah, things were a bit difficult, of course, for everyone. Like I have a salon, so for businesses it was really bad. And we were basically, because a lot of people, we had to take care of the of our employees as well, and then I had to give them money because I know that these girls, they live, they have to support their family, and a lot of them basically are the only are the only ones जो कि पूरा घर चला रही हैं. So it was difficult, yeah. All the savings, everything gone. But the good thing which came out of COVID was that you know what life is now. You cannot plan ahead, because you have to understand that God has his own plans, and you cannot, like, jo hum kehte rehte na, we run after money, we run after having a house, we run after so many stupid things, and we don't even care about our happiness, and we don't take a break.
and just think and just appreciate what we have. So, Correct. yeah, I think I've become more appreciative of life, and I've started living in the moment. Like a lot of people, they ask me, "अच्छा यार, अब COVID खत्म हो रहा है, कम हो रहा है. What do you think? Do you have any travel plans or something like that?" I was like, यार, अभी तो कम से कम दोबारा थोड़ा सा अपने पाँवों पे खड़े हो, because honestly, all the savings, all the earnings. खत्म हो गई हैं, सब कुछ खत्म हो गया. So I was like, listen, अभी आगे का तो plan, there is no way that I'm going to plan ahead. ठीक है ना? I'm going to live in the moment, to be very honest, and I'll be just thankful for what I have, that I've survived the day, that I haven't caught any viral or something like that. You come home and you're like, oh my God, thank you for keeping me alive and keeping me well. That is a blessing right now, if you think about it. Absolutely, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. It's a blessing कि तुम बाहर जाओ and like you're not getting the virus and everything. It's pretty amazing, यार. Exactly. So like इस lockdown में when you were at home, so like did you write any new songs or did you pick up any new activity? कुछ ऐसा किया? Your activity, I never had time for myself, so I meditated a lot. And so because of that, I lost a lot of weight as well, which is a very good thing because I was unable to do that. And and exactly, a lot of people have lost weight because they didn't have anything to do. So what they used to do was क्योंकि आप घर में बंद होते थे तो बाहर निकलना was only your rooftop. Either it was your rooftop or either it was in your garden, if you Right. have any. So, upper rooftop pe I used to just, walk kari ja rahe hain, and looking at the stars because the pollution was, यार हमें तो ये समझ नहीं आती इसकी वजह से clear skies देखने को यार मिले. बिल्कुल, very true. The problem of smog हाँ. in Lahore and in Delhi. बिल्कुल, It's बिल्कुल. really bad. It's really bad. तो हमारे तो फेफड़े, हमारे लंग्स तो पहले ही खराब हो चुके हुए थे. ठीक है ना? मैं तो यही कहती हूँ भाई, हम तो ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से भाई लाहौर और दिल्ली के जो लोग हैं वो तो वैसे ही अपने लंग्स जो है ना वो लेके बस फिर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्मॉग इशू. तो वो खत्म हुआ, वो फिर एक फ्रेश एयर ब्रीथ करने को मिला. सो न्यू सॉन्ग्स यार, honestly, I was more spiritual during this time. So I was more into reading. Okay. And I read a lot of Sufi poets, and I read a lot of, amazing sayings, and I watched Ertugrul a lot, This is how Pakistan spent their lockdown. What is Ertugrul? Please tell to everybody what is it. Okay, so basically Ertugrul is a Turkish play, and it has 5 seasons and it has around 475 episodes. So it's not less than Kumkum Bhagya or something like that. So I think that whoever is following a Star Plus sitcom, they can watch it. If they have the patience to watch these sitcoms, they have the patience to watch Ertugrul as well. So Ertugrul is basically about the Ottoman Empire, that how it started and what was the base of it. The Turkish Ottoman Empire. So it's about that. And it was recommended by our Prime Minister that everyone should watch Ertugrul in this time. So everyone in Pakistan actually started watching it. And to be very honest, it's not about that it's an Islamic show and only Muslim people should watch it. No, it's not about that. It's about value system. It's about humanity. It's about how, like, you should trust in your God, and how you should, it's about how being human, to be very honest. What we have stopped doing is that we have stopped being human.
it's like, मैं सही कह रही हूँ कि they used to live in like tents, हाँ, ठीक है, and they used to migrate after a year or 2 year or 3 year, and they used to like live in tents at that time. और हमारे right, लगता है कि बड़े बड़े घर भी होते हैं, but we are still depressed because we don't have any value system. You know, correct. we don't have any family system, we don't have any value system, we don't have any justice system. The poor are getting poorer, the rich are getting richer. So it's really sad what we've become today. So actually, Ertugrul is more about how things were in the Hmm. 12th century. Oh, So it teaches you a lot. So I really, really, really enjoyed it. nice, nice, nice. So मतलब Yeah. तो जहाँ पे इंडिया में सब लोग रामायण महाभारत देख रहे थे, पाकिस्तान में सब लोग अर्तकुल देख रहे थे. एग्जैक्टली सो रामायण उसमें भी कि कितना सीखा होगा लोगों ने, Absolutely, absolutely. और कितनी ज्यादा. आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग जो कि हमें, और रामायण में भी दिस इज व्हाट दे टीच. दे टीच यू ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, देन द रिलीजन, एंड देन द बॉर्डर्स, एंड देन द कंट्रीज. मतलब हम लोग तो इसमें बट के रह गए हैं यार. पहले रिलीजन में बट के रह गए हैं, फिर उसके बाद सरहदों में बट के रह गए हैं. नहीं भाई वो इंडियन है तो वो पाकिस्तानी है, नहीं भाई वो बॉर्डर है, नहीं भाई वो टर्किश है, नहीं भाई वो अमेरिकन है, नहीं भाई वो मैक्सिकन है. पता नहीं क्या हो गया यार. I know. एग्जैक्टली, Very true. सीरियसली. Very true. It's Yeah. God given earth, and we all have like divided into our own small portions. Exactly. So it's really sad. And when people say na ke artists have boundaries as well, they should they like we used to say that artists, they don't have any borders and they don't have any because art is for everyone. But then the politicians, they started saying no, artists should respect borders and stuff like that. When they are banning our art, why shouldn't we ban their art or ye wo. But honestly, मुझे सही बताना, इससे किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है? हम I एक think it's दूसरे only को the नुकसान people. नहीं पहुंचा रहे हैं, Exactly. हम It's the अपने people आप who को are losing. नुकसान पहुंचा रहे हैं. हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं. आर इकोनॉमी, हमारे सिनेमाज जो हैं भाई, सीधी सी बात है, हमारे टीवी शोज चलते हैं, ठीक है, आपका सिनेमा चलता है, Hmm. ठीक है. हमारे टीवी की वजह से पीपल स्टार्टेड वाचिंग टीवी ड्रामास, ठीक है, और उसकी वजह से डिश जो थी उस पे जिंदगी वगैरह, ये जो सारे जितने भी चैनल्स थे, दे स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड दे स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है. इसी तरह हमारे यहाँ पे सिनेमास चल रहे थे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी, Correct. ठीक है. हमारा नहीं है अभी वो, हम सिनेमाज में उतना ज्यादा अभी नहीं है. Hmm. एक सीधी सी बात है. उसी तरह आपके वहां पे ड्रामाज में इतना नहीं है. तो it's a I'm sorry, we both at losing ends. I'm really Exactly. sorry, and government is losing more like because of it. Tax issues जो है, taxes कम हो जाते हैं, आपके revenues generate कम होना शुरू हो जाते हैं. हमारे cinemas इस वक्त बंद पड़े हैं, cinema halls. उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या. In the end, it's only the people who lose it, not anybody else. Exactly. Or if we talk about like moving on to your music scene, so like you have been doing it for such a long time, but your inspiration came from rock music. So like, how did it all started? Like, बचपन से ही you were into the rock music, या फिर like as you grew up in school, you got an inspiration to listening to rock music. Like, how did it all started? Yeah, I basically loved music, ठीक है, बचपन से. It wasn't about me just listening to rock. I used to listen to rock to look cool. I think everybody does in their teenagers के, yeah, I'm into heavy metal, I'm into Metallica, और जैसे ही फ्रेंड्स वगैरह चले गए, फौरन कुमार शानू के गाने लग गए, ठीक है ना. So I used to do that. मेरे उठा लो जितने भी गाने मुझे जितने आते हैं, वो सारे मतलब सही चीजी 90s के बॉलीवुड जो है ना,
जो हाँ. उस टाइम पे हम बड़ा एम्बैरस होते थे सुनते हुए, क्योंकि हम बच्चे थे और हमें था कि नहीं हम लोगों को बताएं वी लिसन टू ड्रीम थिएटर और डीप हाँ. पर्पल, ठीक है ना, लेकिन असल में हम यही सुनते होते थे। वो वो वाला सीन था मेरा। तो आई यूज्ड टू लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अभी भी व्हेन यू वर टेलिंग मी अबाउट दिस एंकर ऐप व्हिच इज सो हाँ. कूल, so, and even when I've made my channel and I'll start recording my own episodes as well, this is what I thought, that that this is what my roots is, what my culture is. It's not, it's a Sufi thing. It's more about the ghazals, because Urdu is more about adab. ठीक है ना, तो ये शायरी एंड पोइट्री, तो आई यूज्ड टू लिसन टू ईच एंड एवरी, लाइक आई यूज्ड टू लिसन टू ऑल काइंड ऑफ जॉनरास इवन इन माय चाइल्डहुड डेज। Okay. बट क्या था कि जब गाती थी, माय वोकल्स एनर्जी वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू से वेरी कॉमन, जिस तरह एक फीमेल आर्टिस्ट की आवाज होती थी उस जमाने में, एक पतली सी, एक मधुर आवाज, यू नो व्हाट आई मीन। मेरी आवाज Got it. वैसी नहीं थी। Exactly. So इसी वजह से whenever I used to sing Roxette, whenever I used to sing No Doubt, the people used to like my voice more. It suited the genre more. So that is when I started singing rock, and when I started writing my own songs, and when I started composing my own songs. I composed it, keeping my vocals, my tonal quality in mind, and what sounds better in the studio. तो फिर उसी तरह से मैं I came into rock. But अब तो I'm singing everything यार। अब तो मैंने गजल्स भी गाई हुई हैं। I've sung for a lot of drama OSTs. तो वो तो सारे जिसमें मरने धरने वाले गाने जो होते हैं, रोने धोने वाले, तो वो सारे मैंने अब किए हैं। बट या जीने दे, मेरी जिंदगी, ऑल माय ओन सॉन्ग्स, वो सारे फिर इसी एनर्जी में आते हैं। Okay, so they are more of an energetic space, थोड़ा ज़्यादा rock type का music है वो। Yeah, energetic and something a bit rebellious, because when I wrote them, I was going through this transitioning period of my life when my parents wanted me to get married, and I didn't want to get married. I was like, I don't, this is not the motto of my life, के जी आप बस शादी कराओ और आप बच्चे करो, and that's it. मतलब कि ये बहुत ही sad life है. So I didn't want to get married at that time because a few guys rejected me. I was like, बेटा मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ. So I was in that mode, and that is when I wrote जीने दे. Okay. And this is exactly what my song was a bit different. What I wrote for Pink, Pink के लिए हम लोगों ने उसके lyrics जो थे वो सारे फिर change किए थे. तो but it was different. It was जीने दे was more about कि मुझे प्यार है वो हो ही जाएगा, फिर दिल मेरा खो ही जाएगा, और जब दिल खोएगा तो पूरी दुनिया देखेगी. So don't worry. But right now जीने दे मुझे. And so what has been your inspiration? So मतलब तुमने बता दिया कि but when we talk about Pakistani music, so what has been your inspiration as far as Pakistani music is concerned? पाकिस्तानी म्यूजिक में वही वाली बात है कि इतने ज्यादा जॉनर्स थे. जिस तरह पॉप में वाइटल साइंस आ जाते थे, नाजिया एंड जुहेब आ जाते थे. रॉक, सूफी रॉक में देयर वाज जुनून. तो वही वाली बात है कि जुनून हमेशा से एक एजियर बैंड रहा है, ठीक है, कि ओह या आई लिसन टू जुनून, जरा वो दिखाने के लिए. तो वो फिर वो वाली चीज थी. तो इंस्पिरेशंस बहुत थी, बट यस देन अगेन मैं अली अजमत की बहुत बड़ी फैन थी, बिकॉज वही वाली बात कि व्हेन आई यूज्ड टू सिंग अली अजमत, वो एनर्जी आई कुड फील, आई कुड जब आप किसी गाने को फील करते हो तो फिर वो एनर्जी, वो आपका ना गाना कहीं आपको और ही ले जाता है. तो वो मुझे बड़े लोग कहते होते थे, यार यू आर द फीमेल अली अजमत,
क्योंकि वो Okay. हाँ, मुझे ना मेरे खानदान वाले यही कहते थे कि यार अली अजमत जो है ना वो तुम ही गा सकती हो, क्योंकि वो एक एनर्जी थी ना, एक वो एक खुला गला था, एक उस तरह वाले। एंड देन आई यूज्ड टू इमिटेट हिम अ लॉट, यू नो, हाँ, करके गाना और सब कुछ। हाँ. एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग दैट अ लॉट, बट खैर। So did you ever got a chance to meet Ali? Of course, I like, yeah. He's a very good friend of my brother, actually. But I अच्छा. like, yeah, my cousin, actually. So we like a lot of music. We all know each other. जिस तरह यहाँ वहाँ पे film fraternity है, इधर music industry है. And like being a female musician, तो how much difficult was it to get into music? जैसे like अभी भी कुछ है मतलब like are there still some taboos for women to get into music? एक सिंपल सी बात है, आपको बुरे और अच्छे लोग हर जगह मिलते हैं। Correct. I used to work for a call center, ठीक है ना। I used to hear stories of, you know, prostitution and everything, कि रात को यहाँ पे ये होता है, रात को यहाँ पे ये होता है, बट सुबह के टाइम पे हम जैसे लोग भी थे वहां पे, ठीक है। तो एक ऐसी जगह जहां जो कि एक प्रोफेशनल जगह है, ठीक है, वहां पे भी ये हो रहा है, तो इसी तरह मीडिया में भी यही होता है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने अच्छी जगह पे चलना है कि आपने बुरी जगह पे चलना है, ठीक है ना। तो इस वजह से मुझे मुश्किल ये हुआ था। हाँ, मैं अब मैं आती हूँ उस जगह पे। माय फादर बेसिकली, and not just me, he was against this music thing, not just for me but for my brother as well. My brother has a really good voice too. Okay. So my brother wanted to be you know, a singer too. And he said कि नहीं बेटा, तुम क्या मरासी बन जाओगे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। How all parents are, ठीक है ना। और Exactly. उस जमाने में ये मुझे पता है कि ये आर्टिस्ट जितने भी थे, इवन अगर आप पोएट हो जाओ, इवन अगर आप राइटर हो जाओ, इवन अगर आप एक्टर हो जाओ, इवन आप सिंगर हो जाओ, और बड़ी चीज पेंटर यार, पहले तो फाइन आर्ट्स को कि तू किस तरह कमाओगे, तुम तस्वीरें बना बना के कमाओगे। Correct. हमारे जमाने में ये होता था। तो ये वाली चीज थी जिसकी वजह से माय ब्रदर वाज अ बिट हेजिटेंट एंड ही परस्यूड हिज करियर इन बैंकिंग, एंड बट मी, आई वाज अ रिबेलियस वन। सो आई वाज लाइक, मैं तो बनाऊंगी भाई और मेरी मर्जी। एंड आई नेवर यूज्ड टू टेल हिम दैट, एंड कि जी मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या हो रहा है। एंड आई यूज्ड टू गो टू माय कजिन्स प्लेस एंड आई यूज्ड टू लाइक रिकॉर्ड सॉन्ग्स और इस तरह की चीजें। एंड देन आई केम then we came out with Bandiya in Khuda Ke Liye. Bandiya saw huge success even in Correct. India as well. So Yeah. exactly. लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा घबरा गई। अच्छा. हाँ, मैं घबरा गई क्योंकि मुझे जिस तरह की ऑडियंस का पता था, वो ऑडियंस थी थोड़ी कूल, ठीक है, थोड़ी नीश, थोड़ी गिग्स वाली, ठीक है ना, थोड़े हमारे टाइप की ऑडियंस। और जब जो मेरे साथ मेरा कजन था, ही वॉज अ बिट मैस ओरिएंटेड पर्सन, कि यार हम छोटे सिटीज में भी जाके करेंगे, हम गुजरांवाला भी जाएंगे, हम मुल्तान भी जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर मैं थोड़ा घबरा गई थी टू सी द क्राउड, एंड देन आई डिसाइडेड कि यार नहीं, मैं आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, यू नो, आई एम नॉट लाइक, मैं एक तो मेरा वो एक टिपिकल जो पाकिस्तान, हमारे यहाँ पे जो आदमियों की सोच है ना, वो जरा डिफरेंट है, क्योंकि वही वाली बात है कि हम लोग फिल्म्स को, हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो यहाँ पे उस तरह से थी नहीं उस जमाने में। हमारे यहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्री की ज्यादा डिमांड थी, ठीक है, और म्यूजिक इंडस्ट्री में औरत को जरा थोड़ा सा सेक्स सिंबल समझा जाता था कि शी हैज टू बी प्रेजेंटेबल, ठीक है ना, शी हैज टू लुक प्रिटी। व्हेन यू सी नाजिया हसन, व्हेन यू सी हदीका कियानी, व्हेन यू सी इवन मैडम नूर जहां वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट वुमेन, ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। आई ऑलवेज यूज्ड टू बी चबी, ठीक है ना, मेरा था चबी, थोड़ा ग्रंजी, थोड़ा इस तरह की मेरी लुक थी। तो वो जब मैं चली गई बड़े कोई 6,000 पठानों के बीच में,
और वो जब मुझे समझ नहीं आई कि ये हो क्या गया, तो मैं जरा घबरा गई. एंड देन आई डिसाइडेड कि हाँ यार ये मेरा जो सीन है ना, वो थोड़ा मेरी नीश अलग ही होनी चाहिए. सो हाँ इस चीज में मुझे अपनी चीज में प्रॉब्लम आई थी. ओके लेकिन मुझे एक्चुअली पाकिस्तान में इट्स इजियर फॉर अ वुमन टू बी फेमस. अगर वो अच्छी ओके है तो इट्स इजियर फॉर हर टू बी फेमस. एंड ऊपर से अगर उसकी शक्ल अच्छी है तो फिर तो वो 2 मिनट में चढ़ जाएगी. ठीक है ना. और जिस तरह मोमना मुस्तफैसन चढ़ गई हैं, ठीक है ना. कोक स्टूडियो में उन्होंने एक गाना गाया, और चाहे वो पूरा गाना उन्होंने फॉल्सेटो में गाया हो, ठीक है, बट नोबडी केयर्स. ठीक है, नोबडी केयर्स, और वो अपनी शक्ल पे चढ़ गई हैं. ठीक है. सो पाकिस्तान में ये ट्रेंड ज्यादा है. औरत को खूबसूरती पे ज्यादा जज किया जाता है. इवन आदमी को भी, आदमी भी खूबसूरती पे ज्यादा जज किया जाता है, टैलेंट पे बहुत कम. हम लोग जरा हुस्न परस्त लोग ज्यादा हैं. एग्जैक्टली. हम सभी हैं, हम सभी हैं, यार हम सभी हैं. इंडिया में इतना नहीं है, टू बी वेरी. हम पुराने जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं था यार. उठा लो, शाहरुख खान खूबसूरत है, क्या हो गया. नहीं. एग्जैक्टली. अमिताभ बच्चन खूबसूरत है, नहीं, बट व्हेन दे एंटर द रूम इट फिल्स विद चार्म एंड करिश्मा. ठीक है ना. अब करेक्ट. आजकल के वो वरुण धवन खड़ा हुआ था मेरे सामने, मुझे समझ नहीं, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा डिस करूंगी, ठीक है ना. नहीं नहीं हाँ, तो नहीं. वरुण धवन खड़ा हुआ था और शाहरुख खान खड़ा हुआ था. नाउ शाहरुख खान देखा जाए तो वरुण धवन इज, he was very pretty looking, to be very honest. I was a bit amazed. I was like, यार इतना अच्छा लगता नहीं है स्क्रीन पे जितना देखने में अच्छा है. बट बोलता था तो ऐसे लगता था जैसे कोई बच्चा बोल रहा है. और शाहरुख जब बोलता था तो पूरा रूम बंद, चुप, शाहरुख को सुन रहा है. ठीक है. तो ये होता है टैलेंट, ये होती है पर्सनालिटी. ठीक है. ये होता है, दिस इज व्हाट टैलेंट इज बेसिकली. करेक्ट. खूबसूरत मॉडल को होना चाहिए, खूबसूरत एक्टर या फिर किसी सिंगर को तो बिल्कुल ही खूबसूरत होने की जरूरत नहीं है यार. एग्जैक्टली. तो वो मैं तो उस वजह से एग्जैक्टली तो मुझे थोड़ा मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था यार. और ऊपर से ये जो सोशल मीडिया का जो जमाना आ गया है, और लोग जो हैं वो फिल्टर्स लगा लगा के अपनी तस्वीरें लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या, और वो उससे तो मुझे और ज्यादा नफरत होना शुरू हो गई थी. तो फिर मैं इसलिए लॉट ऑफ पीपल बेसिकली दे सेड कि यू आर नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, यू आर नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. आई वाज लाइक, लिसन, आई एम नॉट द, मैं सोशल मीडिया की प्रोडक्ट नहीं हूं. आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ टैलेंट. मेरा टैलेंट सिंगिंग है. इट इज नॉट सोशल मीडिया. टुडे टिकटॉक गॉट बैंड इन पाकिस्तान एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव नो आइडिया. हाँ. Exactly. I was just having a basically fight with someone. No, people, it shouldn't be banned in Pakistan. I'm like, shut up, yaar. What do you know that how much we had to suffer because of it? और फिर म्यूजिक के अलावा भी like what else is there in your life that keeps on you going, like apart from your work and all? Yeah, but when you have your business, it's like your baby, you know, and it's still very young. We started this salon, me and a friend of mine, we started this salon 3 years back, almost 3 years. Let's not count this year, so now 2 years. So exactly. So it's more like your baby. और अब तो वो बेबी जो था वो बहुत ज्यादा बीमार था, जिसकी वजह से अब हम उसको दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए. So it's taking up all my energy, it's taking up all my focus, and you know, so I'm busy with that, to be very honest. Yeah. And like, what was your experience for singing in Coke Studio? Coke Studio was amazing, yaar. It was like कि किसी बच्चे को जब कैंडी मिल जाती है ना, क्योंकि मेरी ना एक विश लिस्ट है. ठीक है. मेरी विश लिस्ट बस मेरी अपनी एक विश लिस्ट थी. आई एम नॉट अ वेरी एम्बिशियस पर्सन. ठीक है. मैंने लाइफ में इतने फेलियर्स देखे हैं कि मुझे आदत हो गई थी. ठीक है. और मुझे, मेरे ख्याल में उस फेलियर्स की वजह से I have become such a content person in my life that I actually thank my Allah that you showed me these failures to make me what I am today. ठीक है. Because I see people go through a lot of insecurities. ठीक है. अब क्या होता है कि मेरी wish list थी to sing for a very good
इंडियन बैनर मूवी, ठीक है, ये मेरी विश लिस्ट थी, और आई थिंक आई गॉट द बेस्ट 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 मूवी विच हैज एवर बीन मेड इन इंडिया, ठीक है। और ऐसी चीज, मतलब यू नो व्हाट आई मीन, यू नो, कोई ऐसी मूवी के लिए नहीं मैंने गाया जो कि एक रीमेक थी, और यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। ज्यादातर करेक्ट। मैंने एक ऐसी मूवी के लिए गाया जिसने मेरे ख्याल में से पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था, और बल्कि लोगों को भी, इंडिया में क्या पाकिस्तान में भी हिला दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरी विश लिस्ट में था कि आई वांट टू सिंग फॉर कोक स्टूडियो। तो ये दोनों चीजें, मजे की बात है, एक ही साल में हुई थी। वाह। और जब मैंने कोक स्टूडियो के लिए गाया था तो इट वाज जस्ट अमेजिंग, बिकॉज आप एक अलग ही एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप सारे म्यूजिशियंस के बीच में होते हैं, and no one is judging you of how you sing. They are just doing their own thing. वो अपने टैलेंट दिखा रहे होते हैं, ठीक है। जो फ्लूट वाला है वो अपना टैलेंट दिखा रहा है, जो गिटारिस्ट है वो अपना टैलेंट दिखा रहा है, जो बेसिस्ट है वो अपना टैलेंट दिखा रहा है। They don't care कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा, ठीक है ना। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और फिर इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और उसके बाद वो दूसरी बात, अगेन मैं कोई एक वो गाना नहीं गा रही थी जो कि किसी का, मुझे ये था कि अगर मैं गाऊं ना तो मैं कोई ऐसा गाना गाऊं जो नुसरत फतेह साहब का ना हो, ठीक है ना, क्योंकि एक ना ये एक सक्सेस स्टोरी बन चुकी थी फॉर everyone in कोक स्टूडियो। नुसरत साहब का गाना लेते हैं, उसको रीमिक्स करते हैं, और उसके बाद चला देते हैं और वो मशहूर हो जाते हैं, ठीक है ना। मुझे ये था कि यार मेरा जॉनरा ये ना हो कि मैं वहां खड़े पंजाबी गाना गा रही हूँ जो कि मेरे जॉनरा का नहीं है, ठीक है ना। वहां पे मैं खड़ी फोक गाना गा रही हूँ जो मेरे जॉनरा का नहीं है। आई वॉन्टेड टू सिंग समथिंग जो कि मेरे जो कि वाकई के लोग कहें यार फायजा मुजाहिद बिकी नहीं, because of Coke Studio, ठीक है ना। And that is exactly what happened, that I got a chance to sing with the great Faraz Anwar, ठीक है ना। इससे बड़ा मेरे लिए क्या वो होगा, और वही हुआ। And people, a lot of people said कि यार तुम्हें कोई दूसरा गाना गाना चाहिए था ताकि तुम ज्यादा मशहूर होती ना। I was like, no यार, no, क्यों तुम लोगों के दिमाग में बस यही है मशहूर होना है, मशहूर होना है, मशहूर होना है, क्यों? एक साइकोपंती है ये बहुत ज्यादा, मशहूर होने वाली चीज। वेरी ट्रू। हाँ, मतलब लोगों को लगता है ना कि मतलब अगर आप एक मुकाम तक पहुंच जाओ तो फिर आपको उसके आगे बस मशहूर ही होना है और कुछ नहीं है लाइफ में। और एग्जैक्टली। सो अभी फिर पिंक के बाद यू हैवंट sang फॉर एनी अदर बॉलीवुड मूवी, isn't it? आफ्टर पिंक नो, क्योंकि उसके बाद ये बैंड, आई वाज actually doing something for Ronnie again. Ronnie is a very good friend actually. Okay. Yeah, Ronnie Lihari. Yeah, the Rising Films guy ना, जो जिनकी सारी ये मूवीज हैं, तो उनके लिए मैं कर रही थी, बट देन वो ये सारा सिचुएशन शुरू हो गई, एंड देन पता है मैं, एंड ही डजंट बिलीव इन दैट, ठीक है। उनको बिल्कुल भी नहीं है कि भाई पाकिस्तानी को नहीं लेके आना और उसको नहीं लेके आना। आई नो हिम, ठीक है ना, बिकॉज ही इज नॉट द सॉर्ट। बट देन आई वाज लाइक यार व्हाई शुड आई पुट हिम इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि नहीं यार तुम लो मेरा, तुम लो, एंड देन यू नो ही फेसेस समथिंग, एंड देन आई एम लाइक नो। उसके बाद मैंने उनको कभी कहा ही नहीं। लाइक हम बड़ी, मतलब कोविड में भी बड़ा हम लोग बातचीत और ये वो, एंड आई कॉल हिम लाइक every other day, I message him every other day, but it's never about कि जी मुझे, कि तुम अब गाना मुझे दो, या वो मुझे कहे यार अच्छा तुम मेरे लिए कुछ गाना कर दो, या कोई नहीं। जब हमें अंडरस्टूड है एक बात कि यार ये चीज अभी मुश्किल हुई हुई है, तो हम एक दूसरे को क्यों, अपनी दोस्ती को कहते हैं कभी आजमाना नहीं चाहिए। And is there any other Indian composer that you would love to work with? यार I would love to work with Indian composer से ज्यादा I would love to collaborate with Vishal. विशाल दल्ला। Exactly, वो वाली बात ना, वो मेरी एनर्जी एंड वो सारी वाली बात। एंड मैं जब भी इंडियन आइडल और इसमें ये सुनती होती थी कि लोग कुर्बान हुआ
गाते थे. So I was like, yeah, हाँ. only me or Vishal can sing this song. So, so exactly. So it's something ke like I would want to actually अगर collaborate करना तो बहुत अब पता नहीं कब होगा. But I would love to meet him someday, you know, and tell him ke how much I like the rawness of his voice. It's really nice. And what I like about him is कि he doesn't try to be, you know, हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि जिसकी ऐसी आवाज होती है ना, हस्की आवाज, वो फौरन ही ना वो बनने, क्रीड बनने की कोशिश करता है. एडी वेडर हर किसी को यहाँ पे एडी, हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ऐसे सिंगर्स हैं जो एडी वेडर की बहुत ज्यादा, थोड़ी सी भी इसकी हस्की वॉइस होती थी, दे ट्राइड टू बी एडी वेडर. और इसलिए मुझे फवाद खान की आवाज बहुत पसंद थी क्योंकि ही नेवर ट्राइड टू बी एडी वेडर. उसकी अपनी एक वो पहचान थी. मैं उस फवाद खान को जानती हूँ बेसिकली जो सिंगर था. ओके. हाँ, तो वो तो इस वजह से मुझे विशाल की जो बात बहुत ज्यादा पसंद है कि उसने अपनी ओरिजिनलिटी नहीं खत्म. आप विशाल को रॉक गाना, जो उसकी आवाज है वो रॉक के लिए ही है, बट एट द सेम टाइम वही वाली बात कि वो इंडियन के चीजिएस्ट, इंडियन सिनेमा के वो जो मूवीज के चीजिएस्ट गाने भी गा सकता है, जिस तरह मैं गा सकती हूँ. ठीक है ना. लाइक उसने अपने आप को एक लिमिट नहीं किया हुआ. ठीक है ना. वो 10 बहाने करके लेके दिल भी गा रहा होगा, वो दीदार दे भी गा रहा होगा. ठीक है ना. वो एट द सेम टाइम कोई सैड सॉन्ग भी गा रहा होगा, बट वो कुर्बान हुआ भी गा रहा होगा. तो ये चीज जो है ना, ये आई लाइक दिस अबाउट हिम. और इसके अलावा लाइक अभी आर यू वर्किंग ऑन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द वर्क एंड ऑल ऑन म्यूजिक? नहीं, अभी म्यूजिक का जो है ना सीन, वो कुछ लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा. जिस तरह मुझे लगता है कि इंडियन सिनेमा में अब लोगों को वहां पे समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है, हम किस तरह से चले, यहाँ पे म्यूजिक का समझ नहीं आ रहा लोगों को. अच्छा. कि हमें क्या करना चाहिए. हाँ, क्योंकि थोड़ा ना सीन काफी हिल चुका है. नहीं. और अभी लॉकडाउन में कुछ नया वया पकाना सीखा? लाइक बहुत सारे लोग कुक बन गए हैं इस लॉकडाउन में. मैंने नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं. पकाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं, सिर्फ खाने का है. और वो मुझे बिल्कुल खाने का शौक है. बल्कि मैंने लॉकडाउन में ऑनेस्टली मैंने कुछ उस तरह से सीखा नहीं है. अच्छा. मैंने हाँ बिल्कुल नहीं. मैंने शायद वही मैं बता रही थी कि टिकटॉक जरूर बंद, मतलब बैन हुआ है और मुझे बड़ी खुशी है, बट आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस अपनी प्राइवेटली. अच्छा. आई यूज्ड टू एंजॉय इट. हाँ, कि जैसे मेरी एक्टिंग का वो टैलेंट निकल रहा है और इस तरह की चीजें, और फिर फिल्टर्स लगाना है कि जी बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो वही वाली बात है कि मैं बड़ी खुश हुई. तो मैंने फेसबुक पे लिखा भी कि भाई थैंक गॉड इट्स बैंड इन पाकिस्तान. तो मुझे किसी ने कहा कि saying someone who like makes, my cousin actually said it because I used to share my videos only with my family. अच्छा. तो कहते कि says that person who used TikTok like abusively. So I was like, it was only for you guys, yaar, trust me. नहीं. So that is what I actually learned in lockdown कि I'm a pretty good actor as well. अच्छा. ये चीज मैंने. अच्छा, एंड में अगर आपको कोई भी एडवाइस देनी हो टू एनी ऑफ द यंग पीपल हु आर लाइक थिंकिंग ऑफ मेकिंग देयर debut or want to come into music, so what would be your advice to them? Yeah, my advice always has been कि please stop making covers. इन covers ने, देखें आप, covers हम गाते होते थे बकायदा तब जब हमें प्रैक्टिस करनी होती थी. ठीक है ना. या कोई कंपटीशन होता था, सिंगिंग कंपटीशन. ठीक है. बट आप आगे बढ़ ही नहीं सकते if you don't have original music. ठीक है ना. That means कि if you don't have any originality, then you don't have any talent. ठीक है ना. तो इस वजह से it is very important to come out with your own music. own music में जरूरी नहीं है कि, फिर वही बात, अगर आपकी आवाज अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि आप कंपोजर अच्छे हैं. ठीक है ना. अगर ऐसी बात होती
तो एक ही बंदा सब कुछ कर रहा होता फिर, ठीक है, एक्टर ही डायरेक्ट कर रहा होता, वो ही लिख रहा होता, वो ही नहीं, हर इंडस्ट्री के अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। करेक्ट। जरूरी नहीं है कि आप अगर अच्छा गाते हैं तो आप अच्छे कंपोजर भी हो, ठीक है ना। अगर आप अच्छे कंपोजर नहीं है, जस्ट गो टू अ गुड कंपोजर, ठीक है, आप अपनी उसको कहें जी ये मेरी टोन क्वालिटी है, ये मेरा स्टाइल है, इसमें कोई अच्छी सी चीज कंपोज करके देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना गाना जो है वो निकालें। इसको भी कहते हैं, इसको भी ओरिजिनल म्यूजिक ही कहते हैं। आपकी पंजाबी इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए चल रही है, आपके बादशाह हो गया या फिर जितने भी ये लोग हैं, इवन मतलब मेरे ख्याल में कितने को लोग हैं लेकिन पंजाबी गाने चल रहे हैं। इवन आई एम लिसनिंग टू पंजाबी सॉन्ग्स यार, और लग दी लाहौर दिया, यू नो, इस तरह के गाने ये सारे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये ओरिजिनल है और ये कैची ट्यून्स बनाते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो इसी वजह से ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है ना। एंड देन डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट योर इमेज। इफ यू आर गुड, ठीक है, तो थिंग्स विल एक्चुअली कम टू योर वे, दे विल, एंड दे हैव फॉर मी एक्चुअली, ठीक है। वही वाली बात है, देर से आए कोई बात नहीं, लेकिन आए जरूर। तो जस्ट बी योरसेल्फ, डोंट लूज योरसेल्फ, डोंट। पीपल दे लूज देमसेल्व्स। वो एक स्टार बनने के लिए ना, दे जस्ट लूज देयर आइडेंटिटी। ये ना करें। सही सही, हाँ बिल्कुल सही, वेरी ट्रू। डोंट लूज योरसेल्फ, बी ओरिजिनल। हाँ, बी ओरिजिनल। बी ओरिजिनल डजंट मीन, आजकल तो यार लोग जो है वो घर में बैठे बैठे गिटार पकड़ते हैं, गाना बजाना शुरू कर देते हैं, गाते हैं और इतने मशहूर हो जाते हैं। हाँ। आप वो जो क्या नाम थी, ढिंचक पूजा टाइप लोग, ताहिर शाह टाइप लोग, एग्जैक्टली। सो विच इज वेरी सैड अगेन, वेरी अनफेयर टू पीपल लाइक अस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बट बट वही है ना, कभी कभी चीजें भी लोगों को पसंद आ जाता है। मतलब वो लोग अलग वजह से वायरल हुए हैं। Exactly, they were so bad that they became viral. Yeah, exactly. अच्छा, जाते जाते कुछ सुनाओगे आप हमारे को? क्या सुनना चाहेंगे आप? आप कुछ भी सुना दीजिए, whatever you feel like. You want to sing a good song of yours, any old song of yours, or you want to sing poetry or शायरी or something like that? पोइट्री और शायरी तो यार फिर नहीं, I'll sing my own song and पुराना एक जीने दे तो मैं नहीं गा सकती क्योंकि वो तो बहुत ही उसके लिए एक अलग ही वो सीन हो जाता है। मेरा एक I'll sing few lines of बंदिया, ठीक है ना? Please. बुल्ले नू समझावण आइया बहना ते भर जाइया, मल्ले बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइया, आल नबी औलाद गली नू तू क्यों लीका लाइया, जेड़ा सानू सैयद सदे दोज़ख मिले सजाइया, बंदिया हो बंदिया, बंदिया हो बंदिया हो बंदिया, बंदिया हो राई साई सभी ताई रब दिया बेपरवाइया, सोने पड़े हटाइया ते कोजिया ने गल लाइया, जे तू लौड़े बाग बहारा चाकर हो जा राइया, बुल्ले शादी जात की पुछनी शाकर हो रे जाइया, बंदिया हो बंदिया, बंदिया हो बंदिया हो बंदिया, बंदिया हो। Thank you. Oh, superb, superb, superb. Thank you, Faiza, Thank you. for sparing your time and coming on the Unnamed podcast with me. No, thank you so much for actually introducing me to this wonderful, amazing app, and thank you so much for remembering
अरे सीरियसली बहुत यार मजा आता है when you're actually like talking to someone जो कि एक बिल्कुल वही random questions ना कर रहा हो बल्कि कुछ हट के हो. So thank you so much. no problem, anytime. आई होप कि आपको ये एपिसोड ऑफ द अननेम पॉडकास्ट पसंद आया एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस कंटेंट वेयर एवर यू आर गेटिंग योर पॉडकास्ट. और अगर आप ये एपिसोड फेसबुक पर सुन रहे हैं देन वेल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वेल kudos कि आप यहाँ तक पहुँच गए because my intention for this podcast was to keep it a little bit more shorter than the regular podcasts, but unfortunately when you talk to some really interesting people the conversations tend to get a little bit longer. So well, I can't help that because the conversations are pretty interesting now, isn't it? So well, I will catch you in the next episode of the Unnamed Podcast, and of course please follow me on Facebook, and of course the Unnamed Podcast is also on Instagram, so आप वहाँ पर जाकर भी you can like the page and you will also get to know about the new guests that we get on our show. So well, many ways to stay communicated. Well, I will catch you guys on the next episode. Till then, you stay cool, you stay tight and live life human size.